السلام علیکم۔ تیری ستم گری ابھی علی کے قلم سے ماخوذ زبردستی کی شادی کے حوالے سے اور آپس کے رشتوں کے تنازعات اور محبتوں کے حوالے سے ایک ایسی انوکھی سی خوبصورت سی کہانی اس کی قسط نمبر 4 کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں لکھاری آن لائن میں۔ ہم سب لوگ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس نے صوفے سے شاپر اٹھائے، اندر لے آئی اور اپنے بیڈ پر چیزیں پھیلائیں۔ دیکھنے لگی 2-3 سوٹ اور ایک فراک اس میں سے نکلا تھا۔ ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن اس کی مرضی کب چلنی تھی۔ وہ بلیو کلر کا فراک پہنے، ہیلز پہنی اور صرف لپسٹک لگائے اور پھر جانے وہ کتنی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ روشنال اجلت میں گھر آیا۔ وہ جلدی میں تھا، پہلے گاڑی خراب ہو گئی۔ شو روم سے گاڑی ٹھیک کروانے کے بعد فرقان کے گھر جانے کے لیے بیکری گیا۔ اوپر سے فرقان کی کالز پہ کالز آ رہی تھی اور وہ گھر آیا، کہیں نظر نہیں آئی۔ صوفے پر دیکھا تو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بلیو اور سنہری فراک میں گلابی مائل رنگت، سحر کرتے ہوئے دلکش نقوش سے سجا چہرہ، لمبی پلکی سلکی بال اور نازک سراپے میں وہ شہزادیوں کو مات دے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ کندھوں سے ڈھلک رہا تھا اور اس کے سلکی بال اس کے چہرے اور کندھوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر سوئی تھی۔ اپنے سے 12 سال چھوٹی لڑکی ایک منٹ میں اس کو چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ روشنا نے آج پہلی بار فرصت میں اسے دیکھا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ نکاح کے رشتوں میں واقعی طاقت ہوتی ہے، اور اس لمحے کمزور ہو گیا تھا، لیکن اپنی یہ کمزوری اس کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتا تھا اور اپنے آپ کو سخت کر لیا تھا۔ وہ اندر گیا کہ وہ اٹھ جائے گی اور زور سے دروازہ بند کیا۔ اس تجربے سے وہ واقعی اٹھ بھی گئی اور ارد گرد دیکھنے بھی لگ گئی تھی۔ چلو میں آلریڈی لیٹ ہوں، وہ ہر چیز کمرے میں کرتا ہوا استقایا اور جلدی سے بولا تھا۔ اس کی بات سنتی وہ ساتھ شال رکھتی اپنے اوپر کر کے خود کو کور کر لیا تھا۔ بے وقوف تمبو تو ایسی کرے جیسے مسجد جا رہی ہو، اور اس کو اپنی لمبی شال کرتا دیکھ کر چڑھا اور ٹوک کیا تھا۔ پر ایسے میں کیسے وہاں کوئی نہیں ہے؟ وہ اس کو ٹوکتا ہوا بولا۔ پر آپ کے دوست تو ہیں نا؟ آپ کے لہجے میں لرزش نہیں، اعتماد تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ اس کی بات سے متفق تھا۔ وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اس کی شرٹ ڈھکی چھپی رہے، اور وہ حقیقت میں اپنی چیزوں کے بارے میں خطرناک حد تک پوزیسو تھا۔ اشنال، وہ چیخ مار کے اٹھی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ حسنال جو لیپ ٹاپ پر گیم کھیل رہا تھا اس سے پسینے سے شرابور، سر سے دوپٹہ ندارت روتا ہوا حسنال اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اشنال ہاسپٹل میں ہے، کچھ نہیں ہوا۔ اسے تسلی دینے کے لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھا جب وہ شدت سے اس کے سینے سے آ لگی تھی اور سسکیوں سے رونے لگی تھی، جبکہ حسنال ایک دم ساکت ہوا تھا۔ اس سے منال نے اس چیز کی امید نہیں کی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے دل میں نئی جذبات جگا گئی تھی۔ وہ صرف گیم، لیپ ٹاپ اور موبائل اور نئے ہونڈا وغیرہ کے لیے جنونی تھا۔ وہ محبت میں جنونی تو نہیں تھا، لیکن وہ اسے شاید جنونی بنانے والی تھی۔ وہ کر بھی گئی تھی۔ وہ بچہ تو نہیں تھا، 23 سال کا پورا جوان مرد لگتا تھا۔ وہ خود سو گئی لیکن اسے بے چین کر گئی تھی۔ اب اس کی رات آنکھوں میں کٹنے والی تھی۔ ایک ہی لمحے میں اس کا کام تمام کر گئی تھی وہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کھانا کھا رہے تھے جب فرقان نے اس کا نام اس سے پوچھا تھا۔ اشنال، وہ ہلکی سی ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ نام تو آپ سے بڑھ کر پیارا ہے، آپ کی کنزا بولی، جس سے اشنال جھیم کر رہ گئی، جبکہ کھانا کھاتے فرقان کو زوردار کھانسی آئی تھی۔ کیا یار تو بڑا گھنا ہے، تو کہہ رہا تھا کہ بھابھی تجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، تو بھابھی کو بچہ بچہ کہہ رہا تھا۔ یاد ہے تیری منگنی والے دن؟ اور یہ کیا تم نے تو بھابھی کی بہن سے منگنی کی تھی؟ جب بھی میں سوچ رہا تھا کہ بھابھی اتنی چینج کیسے ہو گئی۔ میں نے منگنی پہ دیکھا تھا، اس وقت یہ چھوٹی سی تھی۔ ویسے بھابھی کا نام تو نے رکھا ہے نا؟ فرقان نان سٹاپ بول رہا تھا اور اب کی بار منی خیزی سے پوچھا تھا، لیکن روشنال کے لہجے کے پتریلے تاثرات دیکھ کر منہ بند کر کے دیا۔ آغا جان نے شادی کروائی تھی۔ وہ اپنے لہجے کو بہت حد تک کنٹرول پاتا مضبوط اور سنجیدہ لہجے میں بولا، ورنہ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ جس دل سے اس نے بات کو سنبھالا تھا، یہ وہ جانتا تھا یا اس کا خدا۔ کھانا کھاتے اس کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ اشنال نے بمشکل نظریں اٹھا کر دیکھا جس کا ضبط کرنے کے چکر میں لال ہو رہا تھا۔ وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی کاٹدار نظروں سے وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ اس کے بعد پھر تقریباً ہنسی مزاج چلتا رہا تھا۔
फुरकान और रोशनाल लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे और साथ चाय भी पी रहे थे, जबकि फुरकान की बीवी खिंसा उसे अपने साथ किचन में लेके थी। मुझे लगता है रोशनाल भाई आपकी बहुत केयर करते हैं, तभी आपको परियों की तरह लगती हैं। वो उसकी खूबसूरती से मुतासिर होकर बोली थी। आपकी एज क्या है? 19 साल। इस मंथ हो जाऊंगी। वो निगाहें नीचे किए सादगी से बोली थी। व्हाट? 19 साल? इतनी कम एज? कोई मसला था जो आपकी शादी? वो आधी बात अधूरी छोड़ दी गई थी। भाभी रोशनाल बुला रहा है। वो किसी बात का जवाब देती ही कि जब फुरकान उसे इत्तला देने आया था। वो बाहर निकली तो रोशनाल पहले फुरकान मिला और फुरकान ने उसके सर पर हाथ फेर के 5,000 का नोट थमा दिया। नहीं भाई, वो अपने हाथों को भींच गई, गोया साफ कर गई थी। भाई भी कह रही हैं और पराया भी कर रही हैं। इसके शिकवे से वो ना चाहते हुए भी हाथ आगे कर गई थी। इसके इमोशनल डायलॉग से ना चाहते हुए भी वो पैसे पकड़ गई थी। किंजर ने बगौर इसका देखा, जिसकी गुलाबी हाथों की लर्जिश हो रही थी। फिर वो इनसे इजाज़त लेते हुए बाहर निकल आए थे। बैठो, वो दुरुस्त लहजे में धाड़ा। वो गाड़ी में बैठी तो रोशनाल ने जोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और खुद बैठ के गाड़ी स्टार्ट की। रोशनाल रोड ट्रिप का वर्द करती रही, क्योंकि गाड़ी की खतरनाक हद तक स्पीड फुल थी। खौफ से इसका रंग पीला पड़ गया था। वो प्लीज़ आहिस्ता चलाएं, वो घंघियाई आवाज़ में बोली थी। तुम चुप बैठो, आज घर जाकर हिसाब क्लियर करता हूँ। घर पहुँचेंगे या मैं बचूंगी, तो ही हिसाब किताब बचेंगे, उसने दिल में सोचा था। रोशनाल, मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने ट्रक आया था और उसके बाल सारे आगे आगे उसके कंधे पर हाथ रखते हुए चीखी थी। रोशनाल, मोड़ काटते ही गाड़ी के सामने इसके सारे बाल इस कोशिश में आगे आ गए थे। हिरनी जैसी आंखें फैल गई थी। रोशनाल ने उसे देखा और उसने रिवर्स करके बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया था। तेजी से गाड़ी क्रॉस करने की वजह से वो अशनाल का सर डैशबोर्ड से लगा और उसे ऐसा लगा जैसे इसका सर गर्म हो गया था और उसे अपने सर से गर्म स्याल माथा हल्का सा निकलता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन उसने अपना दुपट्टा मज़ीद टाइट किया और उसे सर पर शाल कर ली थी कि उसे दर्द ना हो। तुम ठीक हो? रोशनान उसे देखता हुआ बोल रहा था और इसको हैरान होकर देख रहा था। जी जी, मैं ठीक हूँ। वो अपने सर पर उठती टीसों पर मुश्किल काबू पाकर बोली थी। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर गाड़ी स्टार्ट करके उसने ऐसे गाड़ी स्टार्ट की। उसने ऐसे कुछ जैसे रस्म निभाई हो। और अब की बार गाड़ी की स्पीड हल्की तो नहीं, पर थोड़ी सी कम हो गई थी। अल्लाह अल्लाह करके अपने सर पर हाथ रखकर घर पहुंची थी। आपके कपड़े निकाल दूं? वो डरते डरते बोली थी, जो जब से आया था परेशान बैठा हुआ था। वो बेड पर बैठा गहरी सोच में गुम था। कल जब मैं यहाँ आऊँ तो तुम मुझे नजर ना आओ, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? वो हैरान परेशान होकर सवाल करने लगी। उसे तो इस सवाल की उम्मीद ही नहीं थी। अपने बाप के घर। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम अपनी लोगों के पास चली जाना। पर वहां से तो मुझे सबने निकाल कर हमेशा हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। मैं कहाँ जाऊंगी? उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। वो इतनी आसानी से कहकर इसके दिल के 1000 टुकड़े कर गया था। आई डोंट केयर, जहाँ भी जाओ। वो संगदली की हद अबूर करते हुए बोला था। प्लीज, इतना जुल्म ना करें, वो आंसुओं से बोली थी। मैं घर के किसी भी कोने में पड़ी रहूंगी, पर अपना नाम मुझसे जुदा मत करें। ये घर आखिरी पनाहगाह है। मैं कहाँ जाऊंगी? तो फिर फैसला तुम्हारा। सारी उम्र का दर्द या तलाक। वो उसकी खूबसूरत सरापे से नजरें चुराकर बोला था। पता है, आज मेरा दिल धड़कने लगा था। फुरकान ने मुझे वो ताना दिया जो मेरे बाप ने मुझे दिया था। तुम्हारी एक हरकत की वजह से मैं घर वालों की और माशरे की नजरों में गिर गया हूँ। उसको तुमने संगदिल खुद बना दिया है। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोला था। मैं ऐसा शख्स बन गया हूँ जो जो मौत के मुंह में धकेलने की तुम्हें कोशिश करूंगा। इस आग से बचा लो खुद को। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, खुद को मेरे नाम से आज़ाद करवा लो। तुम्हारी ज़िंदगी जल्दी से बच जाएगी, क्योंकि मैं तुमसे इतनी नफरत करता हूँ जिसकी कोई इंतहा नहीं। तुम मुझ पर ग्रां गुजर रही हो और तुम ये चाहती हो कि ज़िंदगी की जगह में मेरा नरम दिल पड़ सकता है, या मैं अपने तुम्हारे रिश्ते में गुंजाइश रख सकता हूँ। तो ऐसा कुछ है। इसमें बदल गया हूँ, अब मैं धोखों में नहीं आता। वो सिर्फ से कह रहा था। वरना मुझे कुछ मत कहना। वो अब की बार नरमी से बात कर रहा था। आप अपनी जलती आँख के अंदर मुझे जलाएं। जब आप नफरत की आग बुझ जाएगी तो मुझे इस वक्त आज़ाद कर दीजिएगा।
वो इसे कहना तो बहुत कुछ चाहती थी कि वो बेकसूर है। वो इस शख्स का गिरेबान पकड़ना चाहती थी जिसने उसकी हँसती मुस्कुराती ज़िंदगी छीन ली थी। वो अपने किए गए सितम का हिसाब लेना चाहती थी, लेकिन वो ना कह सकी। वो शख्स अपने इंतकाम के लिए इसकी रूह को पामाल कर गया था, जो उसकी आँखों में एक आँसू नहीं देख सकता। वो इस शख्स को एतबार दिलाना चाहती थी। वो ये कहकर इसको हैरान छोड़ती हुई चली गई। आँसुओं की ज़मानत भी जहाँ काम न आई। वो शख्स लफ्ज़ों का यकीन क्या खाक करेगा? वो कमरे में आए तो उसकी सब्र की तनाबें टूट गई थीं। सर से शाल और दुपट्टा उतार कर फेंका था। सर पे दर्द हुआ तो हाथ लगाकर देखा, खून था। वो साइड दराज के साथ बैठी अपने बेड पर बाजू रखती हिचकियों से रो दी थी। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, ना अपने हक के लिए लड़ सकती थी। नीचे दराज से बाबा की तस्वीर निकालकर अपने सीने से लगाकर बच्चों की तरफ फूट-फूट कर रो गई थी। उसे लगा वो आज यतीम हुई है, आज बेसहारा हुई है। वो टूट कर बिखर कर रोई थी। मामा पापा, आप मुझे छोड़ गए हैं। आपने मनपसंद की शादी की थी, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? आका जान तो कहते हैं कि मैं इनका खून नहीं हूँ। मुझमें मुझे बड़ी मामा ने भी घर से निकाल दिया। मुझे आज पता चला है कि घर क्या होता है, यतीम लफ्ज़ क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, ज़िंदगी क्या होती है, सांस क्या होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें चल रही हैं, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। माँ बाप के बगैर भी कोई ज़िंदगी होती है। मुझे लगता है जैसे मुझे मौत आ गई हो और मुझे यकीन ना आ रहा हो। मामा बाबा, मैं मर रही हूँ। आपकी शहज़ादी इस ज़िंदगी से तंग आ गई है। मामा बाबा, प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लें। बाबा आपके बाबा कि इतना बड़ा बंगला भी मेरी जगह नहीं है। बाबा, आपके भतीजे के फ्लैट के 4 कमरों में मेरा वजूद कहीं भी नहीं है। पापा, खुदा की इतनी बड़ी दुनिया में मेरे लिए जगह कम पड़ गई है। मेरा वजूद हर जगह अनफिट है। मम्मा, आपकी शहज़ादी रुल जाएगी। प्लीज़ उसे अपने पास बुला लें। बाबा, जब सारे रिश्ते इतने ज़ालिम हैं तो ये दुनिया कितनी ज़ालिम होगी, जो मुझे गंदा कर देंगे, मुझे रुसवा कर देगी। मुझे आपके भतीजे ने बिछाने में धकेल दिया है। बाबा, अपने अल्लाह से बोले ना कि वो मुझे भी अपने पास बुला लें। आप तो उनके पास हैं, वो आपकी कोई बात नहीं रद्द करेंगे। आप मुझे अपने पास बुला लेंगे तो मैं और मम्मा आप तीनों बहुत खुश रहेंगे, जहाँ इस दुनिया की कोई टेंशन नहीं होगी। बाबा, आप अल्लाह को बताएं ना कि सब ज़ालिम हैं। अल्लाह, आप तो मेरी बात मान लें। वो ये सब बातें करती आखिर में अल्लाह से इल्तिजा कर गई थी। इसको वो भेजकर बेसुकून हो गया था। 2 घंटों से वो करवट बदल रहा था, पर इसको नींद नहीं आ रही थी। किसी को बेचैन करके नींद आ भी नहीं सकती थी। आंखें बंद की तो चम से इसकी आंखों के आगे हिलनी जैसी खौफज़दा आंखें आई थीं। वो एकदम से बेचैन होकर उठा था। उसे फुरकान की बातों से इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। उसे सब फ़र्क तब पड़ा था जब आज एक्सीडेंट से रोकने के लिए उसने उसके कंधे पर हाथ रखा था। उसकी हिरनी जैसी खौफज़दा आंखें देखकर जब उसके लंबे बाल आगे एक्सीडेंट की कोशिश में आ गए थे, इस वक़्त उसके दिल की दुनिया का तहवाला कर गए थे। वो मज़बूत और साबका शेर जैसी जिसामत का मालिक आज खौफ खुद से डर गया था। इसके हाथों का नरम सा लम्स इससे अभी अपने ऊपर महसूस हो रहा था। वो इस लम्हे से डर गया था जब अशनाद ने इसका पहली दफ़ा नाम लिया था। वो इसलिए डर गया था कि कहीं वो अपने घुटने उसके आगे टेक ना दे। वो उसे खुद से दूर भेजना चाहता था कि लोग इसे सच में बदकिरदार ना समझ लें। वो अपने आप को ज़ालिम तस्वर करके भेजना चाहता था कि वो इससे डर कर चली जाए। और वो इसे एक लम्हे से डर गया था जब उसे अशनाद से इश्क हो गया था, जब वो इसकी आंखों में डूब सा गया था। बार-बार तस्वीर में हिरनी तस्वुर में हिरनी जैसी आँखें देखकर बेचैन सा उठ खड़ा हुआ। स्लीपर पहनता उसके कमरे की तरफ बढ़ा था फिर। इसके कमरे की तरफ आया तो कमरा लॉक नहीं था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। इसका दुपट्टा बेड पर पड़ा हुआ था और ज़मीन पर बैठे बेड पर सर रखे पाया था। बाबा, मम, मुझे अपने पास बुलाएं। ये कहते हुए उसकी सिसकी निकली थी। उसने सीधा किया तो हैरान रुक गया, क्योंकि वह सोते हुए कह रही थी कि उनके लफ्ज़ों से रोशनार बख्त के दिल में कोई ठेस सी उठी थी। इसका सर ऊपर किया और इसके माथे से खून निकलता देखकर वो परेशान हो गया था। खून अब सूख चुका था जब उसे अपने दिए गए दर्द याद आए थे। इसने कौन सा खुशी के लम्हात दिए थे जो उसे अपने जख्म दिखाती या अपना दर्द बताती। इसका दिल किया कि वो उसे खुद में छुपा ले और कुछ देर बाद अपने दिल की ख्वाहिश पर लपेट कहता उसे सीधा करके अपने साथ लगा गया था। इसके हाथ में कोई तस्वीर थी। उसने तस्वीर देखी जिसमें चाचू और चाची थे। चाचू ने उसे उठाया हुआ था। वो हक तक सा रह गया था और इसके इस चाचू की औलाद थी जो उसे जान से प्यारे थे, जो उसकी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे।
वो उसके चेहरे पर मुस्कान की बजाय उल्टा उनकी बेटी के दर्द की वजह बन गया था। उसे हर रोज़ नया दर्द देता। वो तस्वीर को साइड टेबल पर रख गया था और उसके जिस्म से तपती हरारत निकल रही थी। उसे शायद बुखार हो रहा था। उसका तपता जिस्म आग से ज़्यादा गर्म था। इसकी सांस गैर हमवार लग रही थी। उसकी गुलाबी चेहरे पर आंसुओं के मीठे-मीठे निशान थे। इसकी आंखें सूजी हुई थीं। वो इसकी हालत देखकर अपने कमरे में ले आया और बेड पर उसे लिटाया। इसके ऊपर कंफर्टर डाला। वक़्त की परवाह किए बगैर वो क्लीनिक के लिए निकला और उसके दिल में वहशत उठ रही थी इसको इस हाल में देखकर। इसे सुकून नहीं मिल रहा था। हर रोज़ वो उसे दर्द देता था। इसे मोहब्बत नहीं, इज़्ज़त तो दे सकता था ना। उल्टा वो उसकी मासूमियत को बखेर गया। हर रोज़ कई लफ्ज़ों से उसकी मजरूह करता, तो कभी-कभी उसको जिस्मानी मार देता और उसकी ज़ात के ऊपर खच्ची उड़ा देता था। वो 15 मिनट बाद वापस आया था। रात के 2 बज रहे थे। वो ऐसे ही बेसुध पड़ी हुई सर इधर-उधर बेचैनी से मार रही थी। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लब ऐसे खुश्क थे जैसे सूखा कोई खुश्क तालाब हो। सुबह जो गाल अब चेहरा चमक रहा था, जो गुलाबी चेहरा चमक रहा था, वैसे लग रहा था जैसे कोई गुलाब का फूल किताब में पड़ा-पड़ा मुरझा गया हो। वो फूल ही तो थी, वो फूल तो उसने पहले दिन तोड़ दिया था, जिसको उसने मुकम्मल तौर पर मुरझा के रख दिया था। वो फूल उस दिन मुरझाया था जिस दिन उसे उसे घर से निकाल कर लाया गया था। बाबा अल्लाह से कहे ना मुझे अपने पास बुला ले। इस हालत में भी वो यही उसकी ज़ुबान पर विर्द था और उसकी मुँह उसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा सुर्ख़ हुआ था। उठो! उसके अल्फ़ाज़ सुनता अपने आप पर काबू पाते उसे उठाया लेकिन वो बेख़बर थी। उसने बमुश्किल उसे उठाया और उसके पास बैठकर अपने हाथ के सहारे से उसको ज़रा-सा ऊपर उठाकर पानी पिलाया। पैनाडोल और पेन किलर दी। सरहाना भी तप रहा था। फिर चाय का कप और बिस्किट में मुश्किल खिलाया और उसकी हालत देखकर वो खुद जलते तवे पर जा बैठा था। इसको अपने रवैये का कुछ न कुछ तो एहसास हुआ था। वो ऐसा शख्स था, जिस्म भी खुद देता ज़ख्म भी खुद देता और मरहम भी खुद ही रखता। अजीब था वो। इसके माथे का ज़ख्म साफ करके पट्टी की और फिर उसको पट्टियाँ करता रहा। उसे जब लगा कि उसका बुखार पिछले एक कम हुआ है, तो वो पिछले 1 घंटे से वो बेचैन रहा और सोचो कि सफ़र पर रहा। पछतावे के नाग ज़हर मार-मार कर उसे डसते रहे। एहसासात के पंछी कहाँ-कहाँ से उड़ानें भरते उसके पास आके कम वो उसके पास आके कंफर्टर अपने ऊपर खींच लिया था। सारा दिन काम करने और दावत अटेंड करने के बाद अब वो थक गया था। अब उसको नींद आ रही थी। तकिया ठीक करके कंफर्टर खींचकर इसके बराबर आ लेटा और उसकी तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुँह करके अब पुरसुकून सो रही थी। इसके ऊपर दुरुस्त करता काम। अभी उसको सोए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था जब उसे सीने पर थोड़ा-सा बोझ महसूस हुआ। उसने नज़रें उठाकर उसके कुशादा सीने में समझने की कोशिश कर रही थी। वो अपने फैसले से मज़बूती खोना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि इस मामले में बेबस हो, इसलिए बुलंद आवाज़ में पुकारा, अशना! वो आँखें खोलकर उसे दूर होने के बजाय उल्टा उसके वजूद में पनाह लेने लगी थी, इस बुखार में भी। हशर सामानियाँ उठाते वजूद से वो नज़रें उठा गया था। वो तो होश में नहीं थी, लेकिन वो खुद तो होश में था ना। कितनी नफ़रत से उसने कहा था कि वो इस रिश्ते में अब और गुंजाइश नहीं रख सकता। वो अपने लफ्ज़ों से मुकरना नहीं चाहता था। वो पहली रात अपने होश खोकर उसकी ज़िंदगी अज़ाब बना गया था, लेकिन अब इसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। इसका गद्दाज़ वजूद उसके लिए किसी इम्तिहान से कम तो नहीं था। वो ना ऐसा करना चाहता था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बाजू में पड़ी अपनी ज़िंदगी को धुतकार देता। वो इसे उठाकर खुद तो सो गई थी और उसकी सारी रात आँखों में कटी थी। इसकी ज़ात पर तो कोड़े लग गए थे। वो नहीं चाहता था कि ऐसे उसकी ज़ात में कोड़े बरसाए जाएँ, क्योंकि उस रात उसके साथ अशनार की ज़िंदगी को जहन्नम में धकेला गया था और उसकी इस खता की वज़ह से वो उसके दूसरे सितम सह रही थी। इसने सोचा वो बेशक माफ़ी ना माँगे, लेकिन उसके साथ अपना लहज़ा तो नॉर्मल रख सकता था। लेकिन एक तरफ वो ये भी चाहता था कि उसे पता भी ना लगे कि इससे वो मोहब्बत करता है। अपनी कमज़ोरी उसके ऊपर अया नहीं होना चाहता था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि वो अपने से 12 साल छोटी लड़की से उसकी मासूमियत से हार गया है। वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं करना चाहता था। उठे, अम्मी कह रही हैं आपको बाज़ार लेकर जाना है। वो उसके पास आया था जो अपनी अलमारी सेट कर रही थी और बेड पे फैले कपड़े अपने तय कर रही थी। उसने एक नज़र उसे देखा। मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ। वो नागवारी से बोली। आपने जाना कि नहीं? वो उसके लहजे को देखता अपने गुस्से पर कंट्रोल करता नरमी से बोला। नहीं जाना। दफ़ा हो जाओ। मत दिखाओ। मेरा दिमाग मत खाओ। मनाने आपने कितने दिनों की उलझन उतारी थी। क्या मसला है आपका? मैं आपके लहजे को बर्दाश्त करूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज़ी करें। मैं आपका दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे दोस्त रहने दीजिए। मुझे शोहर बनने पर मजबूर मत करें।
वो इसे कलाई से दबोचकर बेड पर फेंक कर इसके ऊपर झुकते हुए बोला था कि क्या मतलब है तुम्हारा? मनाल की खौफ से ज़बान बंद हो गई थी। मल्हार ने उसको अपने ऊपर झुके हुए देखकर खौफ से कहा, जो उसके बहुत करीब खड़ा था। मतलब ये मैं समझाऊं? अब उसके करीब बैठ गया था, जबकि मल्हार की तो हैरत से आंखें फट गई थी। वो इस शख्स से ऐसे लफ्ज़ों की उम्मीद नहीं कर पा रही थी। वो इसको अपने करीब देखते बड़े खिसकी थी, क्योंकि वो इतना जुनूनी कभी नहीं हुआ था। 2 मिनट में तैयार होकर बाहर आए, वरना मेरे अगले लम्हे अमल की ज़िम्मेदार आप खुद होंगी। और खुद को तैयार करके रखा। आपको ऐसा कौन-सा रोग लगा है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा? मैं आपके रिश्ते को टाइम दे रहा हूँ, तो इसमें मेरी भलाई समझिए। आपसे अच्छी तो हमारी काम वाली मासी है, जो इसके बिखरे हुलिये को आपसे अच्छी तो हमारी काम वाली मासी है। वो इसके बिखरे हुए हुलियों को देखकर वार्निंग देता हुआ बोला, जिसके बाल खुले हुए थे और पुराने कपड़े पहने हुए थे। वो इसके पास से उठता पिंक कलर का फ्रॉक पकड़ा था, बाहर चला गया था और पीछे मन्नार रोती रही थी। आज हँसना ने उसकी आँखों में वाज़ेह डर देखा था, लेकिन उसे लगा कि इसने जो किया बिल्कुल ठीक किया। वो खाला और अम्मी को देखता रहता था कि वो उसे समझाती रहती कि साफ कपड़े पहनो और अपने कमरे की सफाई रखो, लेकिन उसकी किसी बात का असर नहीं होता था। और अब अपने तरीके से उसने समझाया था। थोड़ी देर बाद वो उसे बाहर आते देखा तो उसने वही पिंक कलर का फ्रॉक पहना हुआ था, जो उसे थमा कर आया था। इसको देखते उसने अपने मखसूस दांत बाहर निकाले थे, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी। उसने अपना आईफोन निकाला और ज़ूम करके उसकी पिक बना ली। वो जल्दी से अपने स्मार्टफ़ोन अंडरपेड फ़ोल्ड फ़ोन में व्हाट्स करता गैलरी से तस्वीरें डिलीट कर गया था। एंड्रॉइड फ़ोन में व्हाट्स करता गैलरी से तस्वीरें डिलीट कर गया था। वो भी दूर थी। उसको करीब आता तो एक सेल्फी कैमरा निकाला था। मेरी तस्वीरें डिलीट करो जल्दी। इसकी इस हरकत को दूर से देखते तेज़ी से वो दाँत पीसती उसके करीब आते हुए बोली थी। कौन सी मोहतरमा? वो ऐसे बोला जैसे कुछ जानता ही ना हो। इतने मासूम मत हो। इनका कह रही हूँ जो भी तुमने बनाई है। वो अपने गुस्से के उबाल पर काबू पाते हुए बोली थी। बंदा कुत्ता पाल ले, खुशफ़हमी ना पाले। भंगन गई। आपकी तस्वीरें मेरे इस आईफ़ोन के काबिल हैं? वो मुस्कुराहट पर काबू पाता हुआ बोला था। तो फिर मुझे गैलरी दिखाओ। इसको यकीन नहीं आया, तभी बोली। उसने गैलरी ओपन करके दिखाई तो वो उसकी तस्वीरें कहीं नहीं थी। उसकी अपनी तस्वीर थी। मेरी तस्वीर डिलीट करो, खुशफ़हमियाँ चेक करें जनाब की। वो उसके सामने हँसते हुए उसकी नकल उतारते हुए बोला था। ये मुँह मसूर की दाल। वो फिर से उसे चिढ़ा गया था। हँसनार आई विल किल यू। उसने गुस्से से मुँह का इसके कंधे पे मारा था। हाय मैं मर गया। वो एक्टिंग करता चाबी घुमाता कार में जा बैठा, जबकि मनार का बस नहीं चल रहा था कि इसके दांत तोड़ दे। लेकिन इसका बस चलता तब ना। वो उठा तो 9 बज रहे थे। सुबह 5 नमाज अदा करने के बाद 5 बजे नमाज अदा करने के बाद सोया। वो घर पर ही मौजूद था, मीटिंग शाम को थी। वो सारी रात काम करता, क्योंकि उसकी फ़ॉरेन कंपनी के साथ एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी। इसलिए सारी रात वो प्रेज़ेंटेशन बनाता रहा था। उसे फ़ाइल आगे करके एक ऑर्गनाइज़ेशन को देनी थी। सारी रात इस प्रेज़ेंटेशन के लिए बदसुकून रहा था, अब जाके उसको सुकून हासिल हुआ था। अलमारी में से सूट निकालने लगा तो ठिठक गया, क्योंकि इसके सारे कपड़े प्रेस में तरतीब से लगे हुए थे। इसने अलमारी ही आज खोली थी, क्योंकि इससे पहले कभी ज़हमत ही नहीं हुई थी। वो खुद बेड पर रख जाती, तो वो तैयार हो जाता। वो पहले फ्रेश हुआ, फिर नाश्ते के लिए किचन में चला आया। अशनाल कॉलेज गई हुई थी। इस रात की तलख कलामी के बाद इसकी बात नहीं हुई थी। उस रात के बाद वो इससे बिल्कुल बात नहीं करती थी। इसके बाद वो उसे बहुत हद तक बदली लगी थी। साफ-सुथरा किचन था। हर शय तरतीब से सजी हुई थी। उसने हॉट पॉट ओपन किया तो इसमें कबाब के साथ अंडे और 2 पराठे पड़े हुए थे। चाय का थर्म चाय थर्मस में पड़ी हुई थी। वो नाश्ता देखकर इसका सलीका-मंदी का कायल हो गया था, क्योंकि सारा घर भी चमक रहा था। इसका कमरा भी साफ था, जो वो उसके सोते हुए पोंछा लगाकर गई थी। इसके सारे काम वो खुद करती थी। इसके इतने सितम के बावजूद, इसकी इतनी नफ़रत के बावजूद भी वो अपनी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हुई थी। इसका सारा काम अपने हाथों से करना, इसके लिए नाश्ता तैयार करके रखे जाना, दिन का खाना वो ऑफ़िस में ऑर्डर कर लेता था, रात का भी वो खुद बनाती थी। 1-2 बार वो होटल सिर्फ़ खाना ल लाया था होटल से, उसके बाद उसे कपड़े धोना, इस्त्री करना, जूते तक वो पॉलिश करती थी। हर काम भी वो वक़्त पे करती थी। वो नाश्ता लेकर लाउंज में आया था। लाउंज भी साफ-सुथरा था। नाश्ता करने लगा पर पराठे और अंडे चाय उसे बहुत ही लज़ीज़ लगे थे। वो साथ नाश्ता कर रहा था और साथ-साथ उसकी दिमाग की गिरहें ताने-बाने बुन रही थी। क्योंकि इसको आज की इसकी ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ था। इसको आज एहसास हुआ था कि इस नन्ही सी जान पर उसकी उम्र से बढ़कर ज़िम्मेदारियाँ थीं।
आज उसे पता चला था कि इसमें बीवी बनने की वो तमाम खूबियाँ बदरजा अतम मौजूद हैं, जो इस अपने हमसफ़र में देखना चाहता था। आज उसे मनाल अशनाल के सामने कुछ भी नहीं लगी। उसे सुबह की पढ़ी हुई एक आयत का तर्जुमा याद आ गया था। तर्जुमा, हो सकता है जो चीज़ तुम्हें पसंद आ रही हो, वो तुम्हारे हक़ में बुरी हो और जो चीज़ तुम्हें नापसंद हो, वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हो। अल्लाह जानता है, मगर तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा। सच में उसे अल्लाह का फ़ैसला तो बेहतरीन लगा। वो कितनी ही देर उसे सोचता रहा। अल्लाह ने तो शौहर के भी हकूक़ बीवी पे वाज़ेह किए थे, लेकिन मोहब्बत होने के बावजूद भी नाजायज़ लाड नहीं देना चाहता था। वो समझता कि उसकी प्यार मोहब्बत से पहले बिगड़ी थी, लेकिन उसने सोचा, शादी के बाद उसने उसका शौहर होने का एक हकूक़ भी पूरा नहीं किया था। इसे सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें फ़राहम की थी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा था कि उसने उसे जायज़ लाड भी नहीं दिए। वो उसकी हर चीज़ का ख़्याल रखती थी, लेकिन उसने एक दिन भी नहीं देखा कि अशनान ने खाना खाया या उसकी तबीयत तो नहीं ख़राब, और वो अपनी अना और नफ़रत के ज़ुल्म में था। वो इसे यहाँ लाकर बिल्कुल लावारिस कर गया था। आज उसने इस बारे में सोचा था। उसने सोचा था कि वो इसकी गलती भी तो माफ़ कर सकता है। वो खुदा ही बन गया था, लेकिन वो रब भी तो हर ख़ता पे माफ़ कर देता है। इसे सोचा कि भँवर के वो सोने के लिए उठ खड़ा हुआ था क्योंकि 2 घंटों बाद उसने मीटिंग पर भी निकलना था। तुम इस वक़्त कहाँ से आ रहे हो? मनाल कमर पे बाजू टकाए दरवाज़े में खड़ी उसकी तफ़तीश कर रही थी कि वो अंदर ना आने पाए, जो 10 बजे घर आया था। कसम से आज आप पूरी की पूरी लेडी डियाना लग रही हैं। वो इसके अंदाज़ को देखता हुआ बोला जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था। वो सिर्फ़ इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही थी। वो ये बोलकर ठहर कर खिसक जाना चाहता था। ना, ना आज मैं आपको लेडी डियाना लगूँगी करीना। आज तुम्हें मुझे बताकर ही जाओगे कि किधर थे तुम। मैं तुम्हें सिर्फ़ बेवकूफ़ लगती हूँ। ज़रूर बेवकूफ़ लगती होंगी, लेकिन यकीन ना मानो मैं हूँ नहीं। वे एक आईब्रो उचकाते हुए बोली, कसम से आप मुझे बेवकूफ़ लगीं या ना लगीं, लेकिन प्यारी ज़रूर लग रही हैं। इसकी बात से मनाल एकदम से गड़बड़ा गई थी और इसकी गिरफ्त दरवाज़े से ढीली पड़ी। एकदम से अपनी कमीज़ को ठीक किया जो पहले ही ठीक थी और दुपट्टे पे निगाह दौड़ाते हुए देखा जो बेड पे पड़ा था। इसको ऐसे कन्फ्यूज़ होता था कि देखकर वो इसका बाजू उठाता तेज़ी से अंदर आया और बेड पे पड़े इसके दुपट्टे पर लेट गया था। तुम निहायत ही कुछ चीप इंसान हो। वो दरवाज़ा बंद करते गुस्से से उसकी तरफ चीखती हुई पास आई थी। थैंक यू। शुक्र है किसी को तो मेरे हुस्न का अंदाज़ा हुआ, ना कि मैं वाक़ई हसीन इंसान हूँ ना। साथ में तुम बहरे भी हो। वो उसके सामने खड़ी हाथ नचाते हुए बोली थी। नहीं, नहीं स्मार्ट तो मैं पहले ही था। गुस्से से इसको लाल-पीला होता देखकर हसनाल उसको देखता रहा और उसको फिर बाजुओं से पकड़कर अपने पास गिरा लिया था। मनाल को तब समझ आई जब वो उसके ऊपर गिरी थी। छोड़ो मुझे चीप इंसान। वो उसके ऊपर से उठने की कोशिश करने लगी जिसने इसकी कमर पर मज़बूती से हाथ जमाया हुआ था। ऐसे नहीं पिंकी स्वीट, ऐसे तो नहीं छोड़ूँगा। कुछ मुआहदात तय करने होंगे, कुछ अनकही बातें होंगी, कुछ प्यार भरी बातें करनी है, ऐसे छोड़ दूँ? इतना शरीफ होता तो पकड़ता ही नहीं। वो उसकी गुलाबी रंगत को देखता हुआ बोला जिसके गाल शर्म से शायद लाल लग रहे थे। छोड़ो बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है एक लड़की के सामने ऐसे बेहुदा बातें करते हुए? इसका मिनी-खीस और बदलते रवैये से इसके दिल में खौफ पैदा हुआ था। वो इसके बदलते रवैये को चाहकर भी अपने लहजे की लड़खड़ाहट पर काबू नहीं पा सकी थी। ना, ना बीवी से कैसे शर्म? अगर आप चाहती हैं कि मैं बुर्का पहनकर रोमांस कर लूँ, तो कसम से मैं काली पहन लूँगा, लेकिन आज नहीं। आज तो बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं इसलिए आज नहीं। वो इसको बेड पर गिराते खुद इसके ऊपर झुकता हुआ बोला था, छोड़ो नहीं तो मैं चीखकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। इसकी सांसों की तपिश अपने चेहरे पर महसूस करते उसे धमकी देते हुए बोली थी, चलें चीखें, मैं आपके साथ मिलकर चीखता हूँ, चलें शुरू हो जाए। हँसना प्लीज़ छोड़ दो। इसकी इन बातों से वो बेबस हुई थी, वो ऐसा कर भी नहीं सकती थी। आपको पहले मेरी 2 बातें माननी होंगी, इसके बाद आपको छोड़ दूँगा। वो उसकी कलाइयों को कमर के पीछे लगाता हुआ बोला जिनको वो छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, जल्दी बताओ। वो जैसे हथियार डालते हुए बोली, चलिए ठीक है सबसे पहले आपने मुझे आप कहना है क्योंकि मैं शौहर हूँ, तो आप पर फ़र्ज़ बनता है कि मेरी इज़्ज़त करें, जैसे मैं आपकी करता हूँ। इसको मुकम्मल बेबस अपनी शराफ़त के किस्से सुना रहा था। शक्ल देखी है आपने? मनाल के मुँह से जल्दी से निकल गया। चलो फिर ठीक है, आप इधर ही सारी रात रहें, मुझे नींद आ रही है। वो उसके कंधे पर सर रखता आँखें बंद कर गया था। हसनाल, अब आप उठ जाएँ। वो बमुश्किल उसे इज़्ज़त देते हुए बोले कि वो उठ जाए। ये अब आपने आज ही नहीं कहना, बल्कि मुझे रोज़ इस तरह इज़्ज़त देनी है। उसके आप कहने पर वो उठ भी गया था।
चलो जल्दी करो। नहीं, मेरा मतलब है हँसना, जल्दी करें, मुझे नींद आ रही है। पहले मेरी दूसरी शर्त पूरी करें फिर छोड़ूँगा, पक्का प्रॉमिस। बता भी दें अब। वो मसनूई इज़्ज़त देते थक चुकी थी इसलिए दाँत पीस कर बोली थी। तो मेरी दूसरी ख़्वाहिश ये है कि इधर किस करें। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला, क्या? ये तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, तुम इज़्ज़त देने के लायक ही नहीं हो। इसकी दूसरी शर्त पर उसकी आँखें हैरत से फट गई थीं। चलिए ठीक है, फिर उधर ही रहे। वो ये कहते दोबारा उसके कंधे पर सर रख गया था। वो आधा घंटा देखती रही कि वो उठ जाए, लेकिन वो था कि उठने का नाम नहीं ले रहा था। वो उठी और उसके चेहरे पर झुकी। ये करने के बाद वो एटलीस्ट इसे छोड़ तो देगा। अकेले तन्हा नौजवान हसीन लड़की को देखकर एक लड़की रात के इस पहर इस पर लाइनें मार रही है। अपने चेहरे पर लम्स महसूस करता पट से आंखें खोल गया। ओह! उठो चीप इंसान, अब मेरे ऊपर से। वो चीखी थी। छोड़ रहा हूँ। यार क्या करती हैं? इतनी चीख क्यों रही हैं? इसको आज़ाद किया जो अब सोफ़े की तरफ भाग गई, लेटी थी। अभी तक के लिए इतना ही, अभी कहानी आगे चल पड़ी है। तो कहानी हमारी जागे जारी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।